अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बहन जो है डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करती है और कहती है कि ये टाई जो है क्रॉस की निशानदेही करती है, तो आपने जो टाई पहनी है ये क्यों पहनी है। तो आइए दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। It is generally felt that the tie is the symbol of the cross. Then, why do you wear the label of the Christian? That's a very good question posed by the sister. And I'm happy that such questions come so that many misconceptions are clarified. She asked the question that tie is a symbol of a cross, symbol of Christian. Then why, as I, being a Muslim, wear the tie? And I do know that many Muslims consider the tie to be a symbol of a cross. But I am a student of comparative religion. Nowhere in any Christian scripture is it mentioned that tie is a sign of a cross. And if it is, the hadith clearly says that you cannot wear that which resembles that of an unbeliever. If it's a specific symbol of a non-Muslim, you cannot wear that label, it is haram. Nowhere will you find a single statement in any verse of the Bible where it says that tie is a sign of a cross. I am aware that many Muslims, they are against the Western culture, and I don't blame them. What I say, if you find something against, if you observe something which the Westerners are doing wrong, you have to object to it. But what things they do good, there's no harm in agreeing with it. What things are neutral, there's no harm, not that you have to object to that also. Many Muslims are so much against the Western culture that they object on each and everything. Tie is not at all the symbol of Christianity. And this question is posed to me in various parts of the world. And I challenge and I tell the audience that if any Muslim can prove to me any time with authentic proof that tie is a sign of a cross of a Christian, I will be the first person to remove it. And I will tell all the people not to wear it. Tie is not a sign of Christianity at all. It's not a sign of a cross at all. It's a cultural dress. And researches have been done by scholars, not from hearsay, from scholars. How did it originate? Some scholars say in the cold countries, people wore a tie to tie their garments which were heavy, in the cold countries, woolen clothes, etc. It's a cultural dress. It's not a dress of the Christian. You go throughout the world, the Christian he wears a tie, alhamdulillah, know about it. The Muslim wears it, the Hindu wears it. It is not specifically a sign of Christianity, it's a cultural dress. And a Muslim is allowed to adopt any culture as long as it doesn't go against the Islamic Sharia. If that culture goes against the Islamic Sharia, like wearing shorts, it's the culture of the Westerners. We Muslims can't adopt it because for a man, the hijab, the aura is from the navel to the knee. He can't wear shorts. It's not allowed. Traveling in a car. The car was invented by the Christian, the Westerners. Can I say the Christian invented it, therefore I can't sit in a car? I'm not traveling in an aeroplane. Can I say that? No. Whatever is against the Sharia, you should not do. Tie is not a sign of Christianity at all. This tie, people say, it looks like a cross. You open and you stretch the circle, it becomes a cross. I tell them the kurta that you wear. You put like that, it resembles more like a cross. So you can't invent your own thinking. Oh, kurta looks like a cross, therefore stop wearing kurta. Can I tell that? Can I ever tell that? See, the Prophet said, anything which is a symbol of a particular religion, don't wear those symbols. Tie is not a symbol of Christianity. It's a cultural dress. It's not a fard you should wear a tie. I'm not saying that. If you don't wear, alhamdulillah, I'm with you. But when I go to the Western country, it helps deleting certain barriers. And if Islam doesn't object to that, I don't mind using it. If Islam objects to that, I should not use anything which Islam prohibits, even if it benefits me. But since this thing, alhamdulillah, is allowed in Islam, there's no problem at all if a person wears a tie. Hope that answers the question, sister. जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, तो दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो थी। जैसे कि इस बहन ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया है दोस्तों कि टाई जो है वो क्रॉस की निशानदेही करता है, लेकिन ईसाई को जो कि वो प्लस का जो निशान होता है उसकी निशानदेही करता है। और बहुत से लोग जो है
ऐसे कहते हैं कि टाई जो है क्रॉस की निशानदेही है, और आप जो है टाई पहनते हैं तो आप फिर टाई क्यों पहनते हैं अगर ये ईसाइयों की निशानदेही करता है। जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने दोस्तों बहुत बेहतरीन जवाब दिया है कि आप मुझे एक कंटेंट बताया है कि किस किताब में लिखा है कि टाई जो है ये क्रॉस की निशानदेही करता है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ये टाई जो है क्रॉस की निशानदेही करता है। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बहन को समझाया और कहा कि अगर आप कुर्ता, लेकिन जितने भी इंसान ये कुर्ते पहनते हैं, अगर आप कुर्ते को उतार दो ज़मीन पर रखते तो ये एक बहुत बड़ा क्रॉस का निशान बनता है। लेकिन बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है कि ये टाई जो है ये ईसाइयों की जो है ये उनकी पैदावार है, ये उन लोगों ने बनाई है, ये क्रॉस का निशान है। ये सिर्फ और सिर्फ गलतफहमियाँ हैं हमारे पास। जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा दोस्तों कि मैं जो है टाई पहनता हूँ और बहुत ज़्यादा जो है वो, लेकिन फॉरेन कंट्री में भी जाता हूँ, लोगों से डिबेट भी करता हूँ। ये टाई पहनने से अगर मैं किसी से बात करता हूँ, वहाँ मेरे साथ ईसाई भी बैठे होते हैं, यहूदी भी बैठे होते हैं, हिंदू भी मेरे साथ बैठे होते हैं, तो उन सब की लेकिन मैं भी बैठा होता हूँ। तो ये टाई जो है ये मैं पहनता हूँ, लेकिन इसमें कोई भी ऐसे जो चीज़ नहीं है, क्रॉस की निशानदेही नहीं है जिस पर लोग कहते हैं कि ये जो है क्रॉस की निशानदेही करता है ये टाई। इस पर दोस्तों बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है, और मैंने भी दोस्तों बहुत ज़्यादा सुना है जो कि कोई यूनिवर्सिटी जाता है या कोई स्कूल जाता है या कभी भी किसी ने टाई पहनी होती है या कोट में वगैरह पहनी होती है, तो वो यही कहते हैं कि आप लोगों ने जो है वो क्रॉस का निशान पहना है और ये जो है इस्लाम में गुनाह है। तो आप पहले इसकी तस्दीक करें कि ये टाई जो है कहाँ से आई है और कहाँ से नहीं आई है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने टाई पहनी हो दोस्तों, अगर किसी ने बांधी हो, सही है, वो बहुत से लोग कहते हैं कि ये क्रॉस की निशानदेही करता है, लेकिन आप लोग अगर टाई को उतारोगे, सही है दोस्तों, मैं एक एग्जांपल बात कर रहा हूँ, अगर टाई को आप उतारोगे ज़मीन पर रखोगे तो वो तब एक क्रॉस की निशानदेही करता है। एक एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब किसी ने पहनी हो और बांधी हो तो वो कैसे एक क्रॉस की निशानदेही करता है। बहुत से लोगों का ये गलतफहमी होती है कि टाई जो है क्रॉस की निशानदेही करता है, और बहुत से तालीम याफ्ता हुए बाइलम लोग ये पहनते हैं, उनको इस बारे में इसकी हिस्ट्री नहीं पता होते हैं, वो आते हैं फिर ऐसे क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों इनके बारे में अपनी स्टडी और अपना मज़हब जो है ये ओपन रखे कि ये जो है ईसाइयों की निशानदेही नहीं करता है, ये क्रॉस की निशानदेही बिल्कुल भी नहीं करता है। जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है कि हर वो चीज़ जो कि हमारे इस्लाम ने वो चीज़ हराम की होगी तो वो हर एक मुसलमान नहीं कर सकता है, वो मुसलमानों के लिए हराम होते हैं। लेकिन दोस्तों ये कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसे हैं जिसमें कोई भी ऐसा जिक्र नहीं आया है कि ये इस्लाम में हमारे पास हराम है या इसका कोई गुनाह है या आप ये नहीं पहन सकते हैं। इस पर दोस्तों अगर आप लोगों ने सुना हो, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कुर्ता तो सबसे बड़ा जो है वो क्रॉस निशानदेही भी करता है, अगर आप वो कुर्ता उतारे ज़मीन पर रखते तो वो सबसे बड़ा जो है वो क्रॉस की निशानदेही करता है। तो क्या अब जो है हम लोगों को कहे कि आप जो है कुर्ता ना पहने, कोई ऐसे कर सकता है कि कुर्ता ना पहने दोस्तों। तो इस तरह दुनिया में बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब किस्म के सवाल आते रहते हैं दोस्तों के, लेकिन इसके बारे में हमें स्टडी करनी चाहिए कि ये जो टाई है ये कहाँ से आई होगा, कहाँ से नहीं आई है। पिछले कुछ ऐसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर बहुत तफसील से भी बात की है दोस्तों कि ये टाई कहाँ से आई है और कहाँ से नहीं आई है। जो जहाँ पे इसकी दोस्तों जिस टाई ने जिसने ईजाद की थी, जिसने पहनी थी, वो भी जो है मुसलमान थे। उर्तून माशरे में कोई एक बंदा था जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो है वो तफसीली बयान किया है। तो दोस्तों टाई के बारे में ये बयान था कि टाई जो है क्रॉस की निशानदेही करता है। आप लोगों ने भी दोस्तों इसका तफसीली जवाब सुना है डॉक्टर जाकिर नाइक से कि टाई जो है वो किसी भी क्रॉस की निशानदेही नहीं करता है, ये लोगों की गलतफहमी है। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन जवाब था और उम्मीद करता हूँ कि ये बेहतरीन जवाब आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।